Morning students. Today we will discuss next topic and it is second last topic of the chapter and name of the topic is osmosis. Okay, this is very important. So what is osmosis? As you are looking in the diagram here, a container is there and in the mid of container a semi-permeable membrane is there. Semi-permeable membrane which allows the movement of solvent only, not the solute, because the size of its pore is very fine. Only solvent molecule can move from one side to another side. Okay, only solvent, not solute, because the size of particle of solute molecule is larger than that of solvent. So only solvent can move from one place to another place. Okay, like here this solvent can move from here to there, or this solvent can move from here to there. Okay, any part. So what is osmosis? Before osmosis, understand diffusion. Already you have studied in the previous class. Diffusion is the movement of gaseous molecule or solvent molecule from its high concentration to low concentration. High concentration to low concentration. As you feel the smell of perfume. Okay, as you will open the stopper or perfume, then it will diffuse from one place to another place because its concentration is high inside the bottle and lower outside. So it will come from inside to outside. But there is no barrier which will stop it to move outside. But in osmosis, there is a semi-permeable membrane. So what will happen? Solvent molecule again will move from its high concentration to low concentration. I am using word its. Its mean I am talking about the concentration of solvent, not the concentration of solution. Here I am giving the definition on the basis of concentration of solvent, not on the basis of concentration of solution. Okay. So what will happen, student? There are two definitions. First which is based on the concentration of solvent, and second which is based on the concentration of solution. Okay. So first understand. First definition is that movement of, as you are looking on the upside, movement of solvent particle from low concentrated solution. Here now concentration of solution is low. Okay, so solution is made when solute is added to the solvent. So in the left hand side, no solvent, no solute is there, only solvent is there. Mean here concentration of solution is less, even zero concentration of the solution is here. Okay, but here solution is there because both components solute and solvent is there. So here we will say here is a concentrated solution. Okay, in this side concentration of solution is high, here concentration of solution is low, or even you can say zero concentration because no solute is there. So in the first definition, movement of solvent from low concentrated means zero concentrated to high concentrated. So आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो लेफ्ट से राइट का मतलब आप क्या कहेंगे? लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. ओके, लेस टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का मूवमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है. बट इन सेकंड डेफिनेशन आई विल टॉक on the basis of solvent. So student understand movement of solvent molecule from its high concentration. It's mean now I am talking about the solvent. So where is the solvent is higher? You will see on left hand side because only pure solvent is there. Here some amount of solute. So here concentration of solvent is less because both component is there are there, but here only solvent is there. So concentration of solvent to the left hand side is very high. So now solvent will move from its high concentration to its low concentration. Hope you have understand the word its. Its mean I am talking about the solvent. Where the concentration of solvent will be high, then it will move from to the its lower concentration. So this is osmosis. तो osmosis क्या हो गया? जनरली solvent का मूवमेंट होता है. तो solvent का मूवमेंट किधर से किधर होता है? दो डेफिनेशन बता सकते हैं, या तो concentrated solution की तरफ होता है या फिर किधर होता है जहां solvent कम होता है. बात दोनों ही की है, बस हमने वर्ड चेंज कर दिया. ओके. Now what is osmotic pressure? So student understand here again in the diagram, as you are looking, the solvent molecule is moving from left to right. Suppose this is the extended form of the apparatus. Okay, and here is the movable piston. This is the piston. I can apply pressure on the wall of this piston. So what will happen, student? Understand carefully, this is very important. Solvent is moving towards the solution. Solvent is moving towards the solution. So what will happen?
as you will apply the pressure on right hand side, that is on the side of solution, so what will happen, this solvent also will apply the pressure on the semi permeable membrane, okay. So what will happen, it will hinder the movement of this solvent into the solution. अब इस वाले को ये इजीली नहीं आने देगा क्योंकि ये वाला सॉल्वेंट भी जा सकता है. व्हाट आई सेड, सॉल्वेंट कैन मूव, सो सॉल्वेंट यहां से इधर भी मूव कर सकता है, इधर से इधर भी मूव कर सकता है, बिकॉज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है. When you will apply the pressure on the wall of solution, then the solvent of solution can move into the solvent, pure solvent. जब आप प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, जो सॉल्वेंट है आपका वो सॉल्वेंट क्या कर सकता है, सॉल्यूशन की साइड भी प्योर सॉल्वेंट की साइड क्या हो सकता है, वो मूव कर सकता है. व्हाट आई सेड स्टूडेंट, दोबारा से समझ लीजिए, जो सॉल्वेंट है वो इधर भी मूव कर सकता है और वो इधर भी मूव कर सकता है, मैंने पहले ही बताया है. जब आप नॉर्मल कंडीशन रखेंगे तो ऑस्मोसिस की वजह से इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट किधर मूव करेगा, सॉल्यूशन की तरफ. लेकिन स्टूडेंट जब आप क्या अप्लाई करेंगे, इस साइड प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर होने की वजह से ये वाला सॉल्वेंट इधर आ सकता है. बट आपने कम से कम प्रेशर रखना है, लो प्रेशर रखना है, इतना प्रेशर रखना है कि ये वाला तो इधर ना जाए पर ये वाला भी इधर ना आ पाए. बात समझ में आ रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिए. मिनिमम प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ सॉल्यूशन to stop the entry of solvent into the solution, okay. Again I am telling, minimum pressure which is applied on the wall of solution to stop the entry of solvent into the concentrated solution is known as osmotic pressure. What is osmotic pressure? Minimum pressure which is, so student read the definition here. Even you can also say that minimum pressure which is applied on the wall of solution to stop the process of osmosis. If this solvent will not go into the concentrated solution, mean osmosis ही रुक गई. तो यहाँ पर दो डेफिनेशन है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए. फर्स्ट क्या है, मिनिमम प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द साइड ऑफ हायर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मीन इस साइड पर क्या होगा, इन ऑर्डर टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए, मतलब ये वाला इधर आ ही ना पाए, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे. ठीक है. बट स्टूडेंट यू टेल मी वन थिंग, व्हाट विल हैपन इफ आई विल अप्लाई हाई प्रेशर टू द साइड ऑफ सॉल्यूशन. मैंने बहुत हाई प्रेशर इस साइड लगा दिया, अब क्या होगा, पहले तो मैंने कम से कम लगाया था ताकि ये वाला सॉल्वेंट इधर ना आ पाए, लेकिन अगर मैं बहुत हाई प्रेशर लगा दूं तो क्या होगा, अब ये सॉल्वेंट इधर जाएगा. तो जनरल ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट मूव करता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, लेकिन अगर आप प्रेशर अप्लाई कर दें तो सॉल्वेंट किधर मूव करेगा, जिधर कंसंट्रेशन कम है सॉल्यूशन की, या प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा. यानी कि ये तो थी आपकी ऑस्मोसिस. व्हाट इज ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन. एंड बट इफ सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट, नाउ ऑस्मोसिस हैज रिवर्स्ड. तो ये क्या हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस. व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, एंड इट इन शॉर्ट इट इज नोन एज RO. ये RO वही है जिससे पानी फिल्टर किया जाता है. सो व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, व्हेन प्रेशर इज हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, then solvent from the concentrated solution will move into the pure solvent. So it is known as reverse osmosis. It happens in your system also. Suppose this is the pipeline through which water is coming, and here is your RO, okay, and here is the tap. So student, here solute is there and your water is there. Solute mean calcium sulfate, sodium carbonate, okay, which provides the hardness to the water, okay. So as it will move into the chamber, so what will happen, some pressure will be applied. So some pressure will be applied, then what will happen, here solute and solvent both are there. Solute is calcium sulfate, calcium chloride, magnesium sulfate, magnesium chloride, etc., okay, even bicarbonate, and solvent is water. So when you will apply pressure to this side, what will happen, water will move into the less concentrated solution, that is into the pure solvent, और यहाँ पर आप गिलास से पानी ले लेते हैं, ये आपका प्योर वाटर आ गया. तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ओके. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. जनरली स्टूडेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर we can calculate using the Boyle's law, and you know that in Boyle's law pressure was inversely proportional to the volume, Boyle's law. So similarly here Boyle's and Ventov, we will use Boyle's and Ventov. So according to this, here we are not using P for the pressure, we are using
पाई फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के, क्योंकि जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतनी तेजी से क्या करेगा, इधर देखो, जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, मीन दिस ये साइड जितनी ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगी तो सॉल्वेंट उतनी तेजी से यहाँ मूव करेगा। इसको रोकने के लिए आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, यानी कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है उतना ज़्यादा आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ताकि इस सॉल्वेंट की एंट्री रुक जाए। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है क्या, प्रेशर एंड concentration. And which pressure? Osmotic pressure. And we know that concentration is the mole per liter. Mole per liter. अगर मैं 1 मोल की बात करूंगा then I will take 1 in place of n. n की जगह कितना ले लिया मैंने 1. So C is equal to 1 upon V. So what is the Boyle's-Van't law? Osmotic pressure is directly proportional to 1 upon V. Osmotic pressure is directly proportional to 1 upon V. This is Boyle's-Van't law. Now according to Charles law. So student, Charles law आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर जो होता है या वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर वो जो होता है वो यहाँ पर इंडिकेट होता है। सो चार्ल्स वेंट लॉ क्या कहते हैं इसको, सो हेयर ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, because as you know that on increasing the temperature particles move fastly. Okay, kinetic energy increases. Kinetic energy is directly proportional to the temperature. जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल तेजी से मूव करेंगे, यानी कि सॉल्वेंट विल मूव फास्ट टूवर्ड्स द सॉल्यूशन एज यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर। तो इस फास्ट मूवमेंट को रोकने के लिए फास्ट प्रेशर भी लगाना पड़ेगा, यानी कि पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी के। टी बढ़ाया जाएगा तो भैया ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। सो दैट्स वाई पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सो अकॉर्डिंग टू दीज टू लॉ हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया। भाई पाई वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और जब हम इस साइन को हटाएंगे देन वी विल पुट ए कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज कांस्टेंट फॉर द सॉल्वेंट एंड इट्स वैल्यू हियर यू विल टेक 0.021 लीटर एटम per mole per Kelvin. Liter atom per mole per Kelvin. This is important for the numerical 0.0821. Okay. So what will happen in place of pi again? In place of concentration, I will take mole per liter. So in place of concentration, mole per liter is there. Okay. So V को यहाँ पर ले जाओ तो रीअरेंज करके आपके पास ये मिल गया। और मोल क्या होते हैं? गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। सो हेयर गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला स्टूडेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड हेयर अब आपने क्या करना है, इफ यू विल टेक द वॉल्यूम in centimeter cube, then you have to multiply it by 1000 to divide by 1000 to convert it into the volume. If you will take in ml, then you will divide it by 1000. तो ये 1000 जो होगा ये आपका कहाँ पर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा। पहले वॉल्यूम यहाँ पे भी ले सकते हो आप यहाँ से हटा के, ठीक है। और जब आप इसको 1000 से आप क्या करेंगे डिवाइड, तो ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो दिस में बी द फॉर्मूला। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, डेफिनेटली इवन इन द लास्ट ईयर दैट इज 2020 दिस क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन विच वाज बेस्ड ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर वाज इन योर एग्जाम, CBSE as well as ISC. Okay, CBSE and ISC in both. Okay, so what is the significance of this? So student, this is very important. So many times it was the question in your exam. Out of all colligative property which will use to determine the molecular weight of high molecular protein, so answer is osmotic pressure, because a small amount of solute that is small value of delta WB will give the higher value of pi, जिसको आप easily क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं लाइक डेल्टा TB is equal to KB into WB upon MB into WA into 1000। सो यहाँ से भी आप मोलिकुलर वेट निकाल सकते हो, लेकिन स्मॉल अमाउंट सोल्यूट की डेल्टा TB में बहुत कम आंसर आता है, डेल्टा TB का रिजल्ट बहुत कम आता है, जिसको आप गलती कर सकते हैं रीड करने में। सेम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेल्टा TF, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट
विल नॉट गिव द सिग्निफिकेंट चेंज इन द डेल्टा टी एफ। तो उसको भी आप रीड करने में क्या कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं। तो आपको वहां पर भी आंसर क्या आ सकती है, गलत आ सकता है। लेकिन यहां पर आपका क्या होगा, पाई को निकालने, एम बी निकालने के लिए आप सोल्यूट जरा सा लेंगे तो पाई का जो आंसर आएगा बहुत ज़्यादा आएगा, जिसको आपको ऑब्जर्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो रीड द सिग्निफिकेंस। वी कैन फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट from colligative properties like relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point. But यहाँ से important है, but for the determination of molecular mass of protein like solute we prefer osmotic pressure method। क्योंकि because small amount of solute क्या करता है, वो significant change देता है किसमें, osmotic pressure में, जो कि हम easily observe कर लेते हैं। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज दैट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक। सो स्टूडेंट, सपोज यू हैव अ सॉल्यूशन आउटसाइड और आपने इसके अंदर किशमिश डाल दी, ठीक है। तो अगर बाहर वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इनसाइड इस किशमिश के अंदर वाले कंसंट्रेशन से ज़्यादा है तो ये हाइपर हो गया, तो ये वाला सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। सो व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन स्टूडेंट, द सॉल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देन दैट ऑफ सेल। सेल का मतलब जैसे अभी हमने किशमिश रख दी थी, तो ऐसे केस में क्या होगा स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, ये किशमिश रखी आपने, इधर बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रख दिया जो कि इससे भी ज्यादा है। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस, सॉल्वेंट मूव करता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किधर ज्यादा है, हाई है, तो ये किधर की तरफ आ जाएगा, उसका वाटर निकल के सेल का इधर आ जाएगा और वो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ओके, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोप्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। इट हैपन्स इन द पिकल, जब अचार होता है, पिकल होता है, यू प्लेस्ड सम सॉल्ट। ओके, सॉल्ट से क्या होता है, एज द बैक्टीरिया कम ऑन द सरफेस ऑफ पिकल, तो बैक्टीरिया की सेल इस सॉल्यूट की वजह के कंपेयर लेस कंसंट्रेटेड है, और ये जो सॉल्ट है ये बहुत हाई कंसंट्रेटेड है, तो बैक्टीरिया की सेल का वाटर बाहर निकल जाता है और बैक्टीरिया मर जाता है। इसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। सेकेंड टाइप इज देयर हाइपोटोनिक। सेकेंड इज हाइपोटोनिक। हाइपो मीन लेस, मीन अब जो है इधर जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन लेस कंसंट्रेटेड है, और इसके अंदर जो हमने सेल रखी है इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो वाटर कहाँ मूव करेगा, लेस टू हाई। तो ये क्या होगा, शेल इस बार क्या होगी, सेल जो होगी वो आपकी स्वेल अप हो जाएगी, और इस चीज़ को हम बोलेंगे, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ये पढ़िए, द ऑस्मोटिक सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज लेस देन दैट ऑफ सेल। ओके, सो कंसंट्रेशन जो है सोल्यूट की वो क्या होगी, बाहर कम होगी, मीन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बाहर कम होगी सोल्यूट की, तो वो लेस कंसंट्रेटेड हो गया, तो वो वाटर कहाँ जाएगा, सेल के इनसाइड चला जाएगा। आइसोटोनिक इन विच बोथ सॉल्यूशन दैट इज solution and the cell both have same concentration, आउटसाइड भी इतनी है जितनी इनसाइड है, तो ये ना तो इधर जाएगा ना बाहर आएगा, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसे केस में ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, दोनों का सेम होता है। एंड आई हैव टोल्ड यू रिवर्स ऑस्मोसिस, ओके, जिसमें प्रेशर क्या करना पड़ता था, हाई लगाना पड़ता था। ओके स्टूडेंट, सो टुमारो वी विल डिस्कस एबनॉर्मल मोलर मास, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट विल बी द लास्ट टॉपिक, and after that we will start the exercise. Thank you.